guys, Assalamualaikum. This is me Arika Haq and welcome to another exciting episode of the Trendsetter Show. So please welcome the charming Areej Chaudhary. आप फैमिली में सबसे ज्यादा क्लोज किससे हैं? कोई भी नहीं. कोई पाकिस्तानी सेलिब्रिटी क्रश? It's a difficult question. अगर एक पॉलिटिशियन के साथ डिनर का मौका मिले तो किसके साथ जाना पसंद करेंगी? तो अब जान जाएंगे अगर बता दूंगी. अगर आप एक फ्रूट होती तो कौन सा फ्रूट होती? मैंगो. You like mangoes? बहुत मीठे होते हैं. एक्ट्रेस से बात करने का ना एक अलग ही मजा आता है. Hey guys, Assalamualaikum. This is me Arika Haq and welcome to another exciting episode of the Trendsetter Show. तो आज हम बात करने वाले हैं ड्रीम्स के बारे में. ड्रीम्स तो हर कोई देखता है, लेकिन पूरा बहुत कम लोग कर पाते हैं. और बिल्कुल उसी तरह हमारी आज की गेस्ट भी वो हैं जिन्होंने अपने कई सारे ड्रीम्स पूरे करे. So please welcome the charming Areej Chaudhary. Hello, Assalamu alaikum Areej. I'm doing good. Actually, I was really looking forward to meet you because you know, actress से बात करने का ना एक अलग ही मजा आता है. Thank you. Also, Areej, आपकी जर्नी शुरू हुई मिस वर्ल्ड पाकिस्तान से, then मिस अर्थ, मिस ग्लोबल, यहाँ तक का सफर कैसा रहा? Yeah, it was an amazing journey and obviously it's a proud moment for me. Like presenting my country internationally. Yeah, but with a huge responsibility as well. Definitely. हाँ. Also, Areej, हमें पता चला है कि आपका एक recent drama on air हुआ है, which is called Pal Do Pal. Yes, it's on air. How was your experience on set? On set, it was a good experience with different personalities, and I'm playing a character which is positive towards negative. So मजा आ रहा है उसमें जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो और उसमें आप इतनी सारी चीजें देखते हो कि इस तरह की पर्सनालिटीज को आप रीड करते हो. एक्चुअली समटाइम्स ओवरवेलमिंग हो जाता है थोड़ा सा, यू नो. हाँ. ऑल्सो आवर ऑडियंस एंड मी पर्सनली वी लव्ड योर कैरेक्टर इन कभी मैं कभी तुम. ओह या नताशा मजे का था. ऑल्सो Areej, ये जर्नी शुरू कैसे हुई? लाइक व्हाट वाज योर फर्स्ट ड्रामा, ऑन सेट एक्सपीरियंस, एनी मेमोरेबल यू नो थिंग you would like to share with our audience? My first drama was with Hum TV. It was Sitam. And I got negative character in that. और memorable ये था कि मैं सबको समोसा खिलाती थी सेट पे. What? समोसे खिला दी थी आप? सबको. आलू और उन दिनों में I think रमजान भी चल रहा था तो बहुत मजा आता था. Like it was a good experience with them. That's great. Also इस पूरी जर्नी में आपकी फैमिली ने आपको किस तरह सपोर्ट किया? My family is very supportive and I think अभी मैं जहाँ भी हूँ और मैंने जितना भी काम किया है, it's just because of the support they have given me and the trust. माशाल्लाह. Obviously, so my family is very good, mashallah. Of course, if they trust you, तो फिर तो you know that's the goal. अच्छा, उसके अलावा I would like to ask कि आप फैमिली में सबसे ज़्यादा क्लोज किससे हैं? फैमिली में मैं सबसे लाडली हूँ. हाँ, और क्लोज सबसे हूँ, लेकिन ज्यादा ये सोचने वाली बात है. सोचने वाली बात वो भी ऑन कैमरा. Okay. तो आई थिंक माय फादर एंड माय एल्डर ब्रदर. अच्छा, are you the eldest sibling or the younger one? The youngest one. Youngest one. अच्छा, either it's the younger ones or the eldest ones. सही है, जो कि अब्बा के बहुत करीब होते हैं. I think बेचारे बड़े ज़्यादा क्या पिसरे होते हैं responsibilities. I am the elder sibling. You are the elder one. Yes. Oh. और मैं अपने अब्बा से बहुत करीब हूँ, like. Also, modeling या acting, इन दोनों में से ज़्यादा challenging क्या लगता है आपको? Yeah, modeling is something very different here, which I have experienced, and I think because I became Miss Pakistan, and it was different outside internationally. So I have little experience with the modeling in Pakistan, so I cannot say much about it. But in acting, it is challenging in a lot of aspects. Like आप कभी किसी मूड में हो बड़ा, you have to act. बिल्कुल. Sometimes मैं इतने हंसने वाले मूड में होती हूँ, मुझे रोने वाली एक्टिंग जहर लग रही होती है क्योंकि मुझे रोना नहीं आता आसानी से. यही तो एक्टिंग है. मुझे नहीं रोना आता और मुझे विक्स लगानी पड़ती है और फिर भी मेरी आंखें ड्राई रहती. इफ आई डोंट वांट टू क्राई, आप मेरी आंखों में कुछ भी लगा लो, मैं नहीं रो पाती.
तो ऐसा क्या करें जिससे आप रो जाएं? एक बार सीन फंस गया था। तरके वफा का लास्ट, और वो भी इंटरवल सीन था, मतलब पीक सीन था, और रोना आ ही नहीं रहा। सब कुछ विक्स लगा ली, क्यूरीन लगा ली, सब आईज बिल्कुल ड्राई। फिर how did you manage? नहीं, फिर बस वो जो खुश्क रोने वाले एक्सप्रेशंस होते वो दिए। बिकॉज़ फिर टाइम लगता ना आपको, फिर थोड़ा बहुत टाइम चाहिए होता। कैरेक्टर में जाने के बाद भी रोना नहीं आता? कैरेक्टर डिपेंड करता है कि अगर आप इन एंड आउट हो रहे हैं बार बार। हाँ, you are definitely right about that. अच्छा, also you are a psychologist by profession. तो आप उसको practice करते हो? Not by profession, but I studied psychology. Oh, you studied and, that? I completed my bachelor's, but in between I was also working in the drama industry. So it helps you a lot in understanding different personalities, even your character. When you're playing a different character, so it helps me with that कि इस तरह की जो पर्सनालिटी के लोग होते हैं उनका बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, क्या होना चाहिए, उनका पोस्चर क्या होता है, उनकी आईज कैसे शिफ्ट करती हैं। सो आई गेट दैट। तो ये तो एक बहुत प्लस पॉइंट है ना फिर आपके पास। तो इसलिए मुझे पहले अल्लाह मियां ने इसमें पढ़ाया एंड देन आई शिफ्टेड टू हियर। दैट्स लवली। आपका क्लोजेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। बहुत क्लोज मेरी एक बचपन की दोस्त है, शी इज इन लाहौर। हर नेम इज अलीशा। ओके, हाय अलीशा। शी इज वेरी क्लोज टू मी। ओके, what do you think कि सोशल मीडिया की वजह से हमारे रिलेशनशिप्स मजबूत हुए हैं या वीक हुए हैं? Yeah, I think it's in between. हम जब भी किसी चीज को बहुत आगे लेके चलते हैं वो भी खराब होती है, बहुत नीचे लेके चलते हैं तो वो भी खराब होती है। रिलेशनशिप्स को भी आपको इसी तरह बैलेंस रखना है, क्योंकि इसके थ्रू आप पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, पॉजिटिव भी पड़ता है। सो आई थिंक इसका कोई लेना देना नहीं, इट्स ऑल ऑन यू, हाउ मच टाइम यू गिव टू योर सेल फोन एंड हाउ मच टाइम यू गिव टू योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। यू आर राइट। अच्छा, ऑल्सो आपका पहला पेचेक कितने का था और उससे आपने क्या खरीदा? कितने का था तो मैं नहीं बता रही यार, बट हाँ मेरा पहला पेचेक बहुत अच्छा था। और मैं बहुत शाखिर हूँ, तो मैं I always go shopping in traveling internationally. So like what was the first thing that you bought with your first paycheck? Gold. Gold, yeah. ज़्यादा अच्छा बड़ा पेचेक था guys. Okay. हाँ. अगर सोशल मीडिया ना होता या ये इंडस्ट्री ना होती तो आप क्या प्रोफेशन कर रही होती? मैं एक रेसर होती। रेसर? हाँ, और नेचर लवर होती। ओके, जो हूँ भी, आई मीन टू से। रेसर कैसे? इट्स सो डिफरेंट। या like an F1 racer? Yeah, car racer. Car racer. हाँ. Do you know how to drive? Yeah, obviously. I'm a very good driver. फिर ठीक है, वरना तो। बट कभी आपने ट्राई किया Formula 1 में बैठ के something like that? माशाल्लाह से I have my own cars and I do traveling on them as well. तो बहुत मुझे मजा आता है। अच्छा, आपकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है जिस पे आप खुद भी प्राउड फील करती हो? I think my biggest achievement in my life is when I became Miss Pakistan and I did the charity work for the orphans. And it was internationally in Bali as well. Okay. Yeah, there was a connected teamwork which we built a unit for an orphanage. So that was the achievement. अरीज, कोई एक ऐसी personality जिससे आप बहुत ही मुतासिर हुई हो या inspired हो? It's a difficult question. It is? Because I get very, it's a very difficult question for me क्योंकि मैं बहुत आसानी से inspired नहीं होती. So, it can be anybody from fashion, maybe my brother. Brother? Yeah, my brother. वो क्या करते हैं? Actually, I get inspired, with the nature of the person. So it can be anyone. Okay. It's not important. It should be someone from the industry or somewhere else. It's from the nature. She's a nature lover, guys. ये दिख रहा है हमें. अच्छा, रीज, मिस वर्ल्ड पाकिस्तान बनने के बाद लाइफ में क्या चेंज आया? लाइफ में चेंज इस तरह से आया कि जब आप इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके आते हैं तो सबका एक ही सवाल होता है, क्योंकि वहाँ पे ये होता था कि कोई भी आपको ये नहीं कहता अरीज, nobody knows my name. वहाँ पे सिर्फ ये कहते हैं पाकिस्तान। yes. तो पूरा पाकिस्तान आपके सर पे होता है। तो आई थिंक
उसके बाद काफी चेंजेस आए. आई केम हियर एंड देन देयर वर सम चैलेंजेस एज वेल, क्योंकि Yeah, I would हमारे love यहाँ to पे know about that. हमारे यहाँ पे आइडिया नहीं है लोगों को लगता है कि ब्यूटी पेजेंट्स इज ऑल अबाउट बीइंग ब्यूटीफुल. इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट योर होल पर्सनालिटी. आपकी पूरी पर्सनालिटी काउंट बिल्कुल. होती है और उसमें 80% आपका चैरिटी वर्क काउंट होता है. अगर ये किसी को ऐसे नहीं पता, लेट मी टेल यू. तो यहाँ पे वो ट्रेंड नहीं था, तो काफ़ी क्रिटिसिज्म और ट्रोलिंग, बैकलैश, बट आई वाज ओके. आई डोंट माइंड दैट. You managed it well. I don't care about it. I do what I like. यही होना चाहिए इंसान को ना, क्योंकि you can never please everybody at the same time. हाँ. तो बस इंसान खुद को खुश कर ले, यही बेहतर है. आप वो करो जो आपका दिल कर रहा है और आप सुकून में होने चाहिए. अच्छा, ऑल्सो अरीज, जो हमारी ऑडियंस है, बहुत सारे लोग आई एम प्रीटी श्योर कि वो ब्यूटी पेजेंट्स में जाना चाहते होंगे या उसका पार्ट बनना चाहते होंगे. सो व्हाट्स द प्रोसेस, कैसे जाते हैं, क्या करना होता है? एनी टिप्स, एनी एडवाइस फॉर आवर ऑडियंस? या इट्स वेरी इजी, क्योंकि व्हेन आई बिकेम मिस पाकिस्तान तो मैंने सर्च किया था मिस पाकिस्तान वर्ल्ड. तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कैनेडियन है और इनको जो रन करी है वो भी एक लेडी है जिनका नाम सोनिया अहमद है. शी इज़ द प्रेसिडेंट. उनके पास लाइसेंस है, वो इंटरनेशनली पेजेंट्स में एलिजिबल होते हैं जो लोग, उनको भेजा जाता है. और उसमें क्राइटेरिया ये है कि आप 5'4" आपकी हाइट होनी चाहिए या उससे ऊपर हो. एंड फॉर द मेन पेजेंट जो कि मिस है MISS, उसके लिए आपका एक एज क्राइटेरिया है. ठीक है. और फिर उसके बाद आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं, फिर बहुत सारा आपका चैरिटी का काम होता है. तो आप सिंपली जब लिखेंगे तो उस पर फॉर्म आता है, आप वो फिल करते हैं और उसके बाद वो फिर आपको ईमेल्स के थ्रू पूरा एक प्रोसेस स्टार्ट होता है. गाइड भी करते हैं, सब कुछ गाइड करते हैं. फिर बहुत लंबा प्रोसेस है. फिर आप करते अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो फिर आप उसको ज्वाइन करते हैं. और अगर आप जीत जाते हैं, जो कि इंटरनेशनली भी लड़कियां, पाकिस्तानी जो लड़कियां बाहर रह रही हैं वो भी अप्लाई कर रही होती हैं मिस पाकिस्तान के लिए. तो अगर आप जीत जाते हैं तो फिर आप एलिजिबल होते हैं इंटरनेशनली किसी पेजेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए. फॉर एग्जांपल मिस ग्लोबल, मिस अर्थ, ये दुनिया का 3रा लार्जेस्ट ब्यूटी पेजेंट है, मिस अर्थ. ओके. या मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड के बाद मिस अर्थ आता है. मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड एंड देन मिस अर्थ. या और अर्थ जो है वो अर्थ का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इस पे जो कॉज है वो आप नेचर को प्रोटेक्ट कैसे कर रहे हैं, तो सब उस पर डिफरेंटली काम कर रहे होते हैं. अच्छा. सब अलग से काम करते हैं. और उस पर एक जो मुझे बहुत मजे का लगा था, आपने एक ऐसा ड्रेस बनाना है जिसपे आपने पैसे खर्च नहीं करने, जो आपके घर में है. आपने उससे कुछ तैयार करना है टू प्रोटेक्ट योर अर्थ, लाइक मदर अर्थ. मजा आया था बनाने में? मैंने पता किससे बनवाया ना मतलब मास्क, ये जो फेस मास्क नहीं होते, ओके यूज हुए उनको वॉश करा कर. यार ये तो बहुत अच्छा आइडिया था. और वो इतना प्यारा लग रहा, और उसके इयररिंग्स भी थे. इट वाज सो क्यूट. आप फैशन डिजाइनर क्यों नहीं है? तभी आइडिया नहीं था यार. नहीं, ऑनेस्टली ये बहुत क्रिएटिव आइडिया था. हाँ, देयर वाज वन ऑफ माय मेकअप आर्टिस्ट. तो वो कहते ना, जब आप कहीं जा रहे थे और मैं जल्दी में थी और मेरे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे थे, तो शी सेड मैं पूरी रात लगाऊंगी और मैं तैयार कर देती हूँ. उन्होंने तैयार किया था. That's wonderful. हाँ, बहुत प्यारा था. That's wonderful, Areej. Stay tuned, guys. We'll be back after a short break. Hey guys, welcome back. आप देख रहे हैं द ट्रेंड सेटर शो और आज हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी सी गेस्ट मौजूद है, अरीज चौधरी. ओके अरीज, लेट्स टॉक अबाउट फैशन. ओके. जैसे कि मैं देख सकती हूँ, you're wearing in very cutesy court set type चीज. So who's your inspiration in fashion? सच बताऊं? हाँ. कोई भी नहीं है. अच्छा, सच बताऊं? जो दिल करता कोई लेती हूँ सच में. हाँ. तो आप खुद ही खुद को स्टाइल कर लेती हैं? कि मैं अपनी मर्जी से जो पहनूं, मुझे बहुत बस वो मुझे कैरी करना आना चाहिए. क्या एग्जैक्टली, दैट्स द थिंग कि भाई अगर आपको कैरी करनी कोई चीज आती है तो आप कुछ भी पहन लो. अभी रिसेंटली मैंने एक फर्शी शलवार के साथ छोटी शर्ट पहन के दुपट्टा ले लिया, इतना क्यूट लग रहा था. That was looking very nice. आजकल चल भी रहा था फर्शी शलवार का ट्रेंड ना. हाँ, लेकिन वो सब कमीजों के साथ पहन रहे थे. हाँ, मैंने रैंडमली फिटेड टी शर्ट के साथ पहन के ऊपर दुपट्टा ले लिया. वो इतना क्यूट लग रहा था चूड़ियों के साथ. तो आई लाइक इट द वे आई कैरी. आप खुद भी ट्रेंड्स बना सकते हो बिकॉज़ वी ऑल आर ट्रेंड सेटर गाइस. यस, नेम भी है. कितनी अच्छी बात कही है. थैंक्स. अच्छा, व्हाट्स योर स्किन केयर रूटीन और सेल्फ केयर रूटीन? ये भी सच बताऊं? आप सच बताएं, कोई रूटीन नहीं होगी आपकी, है ना?
कुछ तो होगा। मैं बहुत केयरलेस हूँ, आई एम वेरी केयरलेस पर्सनालिटी इन रिगार्ड टू स्किन केयर। मेरे पास एक लोशन है निविया का, मैं वो लगाती हूँ सुबह उठ के। हाँ, बट मैं सोती अच्छे से हूँ। ओके, मतलब मुझे 10 घंटे की नींद चाहिए होती है हर हाल में। एक्चुअली स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। हाँ, स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। और any tips about diet or हाँ, gym डाइट का and है all? कि आई डोंट ईट जंक फूड मच। बचपन से नहीं खाती हूँ, मुझे देसी खाने पसंद है, देसी घी पसंद है। तो बर्गर, पिज्जा ये बहुत कम, बहुत। बर्गर तो मुझे बिल्कुल ही पसंद। अच्छा। पिज्जा आई लाइक इट, वो मैं कभी कभी खा लेती हूँ, बट मोस्टली जो मेरी डाइट है वो मटन, वेजिटेबल्स ये होती है। ओके, कोई ट्रेडिशनल हैक जो कि आप यूज करती हैं, यू नो, फॉर योर हेयर, क्योंकि आपके माशाल्लाह से बाल बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। ये भी खराब हो चुके हैं, बट स्टिल दे आर गुड। ओके, इट्स वेरी सिंपल दैट आई डोंट यूज एनी हीटिंग स्टफ एंड ऑल दैट। एनी स्पेसिफिक ऑयल जो कि आपकी नानी दादी बनाया करती थी? या माय मदर, मेरी मामा, वो कुछ स्पेशल ऑयल्स हैं जो हमारे घर में कुछ लोग हैं जो निकालते हैं। आई थिंक उसमें बादाम, आंवला, रीठा, प्याज, कुछ और भी, कलवंजी, इंस्टा के सब कुछ मिलाकर फिर उसमें कोई विटामिन ई के कैप्सूल्स और ये सब चीजें डालकर वो मिक्स करके फिर वो बनता है। Yeah, I've heard विटामिन ई कैप्सूल्स बड़े अच्छे होते हैं for your hair, also for your skin. I think बालों के लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर हम उनकी केयर कर रहे हैं और हम फिर भी हीट और ये सब चीजें लगा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। अगर आपको उसको प्रोटेक्ट करना है तो आप कोशिश करो कि आप कुछ ऐसे हेयर स्टाइल्स भी ट्रेंडिंग में आने चाहिए जो जिनमें आपको ये सब चीजें ज्यादा लगाने की जरूरत ना पड़े। नेचुरल रखने चाहिए। वैसे नेचुरली मेरे जो बाल हैं वो वेवी हैं। सो व्हेन आई वेक अप, मैं कभी शूट पे ऐसे भी चली जाती हूँ और जो ड्रामा था कभी मैं कभी तो उसमें 80% आई वाज द वे आई एम। हाँ, बिल्कुल नेचुरल हेयर थे आपके। मेकअप नहीं होता था, बहुत कम, ग्लॉस मुश्किल से, सिर्फ यहाँ हल्का सा टचअप और मस्कारा एंड दैट्स ऑल। और बाल भी जो थे वो थे। सो व्हाट आर योर फेवरेट कलर्स? लेट्स टॉक अबाउट कलर्स। ब्लू इज माय सो फेवरेट कलर कि सबको पता चल गया हर वक्त ब्लू। I love blue, exactly. मेरा wardrobe भी blue से भरा हुआ है भाई। I don't know, there's something about blue. हाँ, I love blue color. पर आजकल मुझे ना कलर्स सीजन के साथ साथ फ्लक्चुएट करते रहते हैं। अभी जैसे बेज, ग्रे, पिंक, ग्रे का कॉम्बिनेशन पिंक के साथ, ये बड़ा प्यारा लगता है। ऑफ वाइट का पिंक के साथ, तो मैं शिफ्ट करती रहती हूँ। कभी ये कलर्स अच्छे लग रहे होंगे, फिर ब्राउन के साथ कुछ जो अच्छा लगा पहन लिया। ओके, देसी और वेस्टर्न, व्हाट्स योर प्रेफरेंस? मोस्टली वेस्टर्न आई वेयर, बट ईस्टर्न एज वेल। इट डिपेंड्स, क्योंकि कभी कभी मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली मेरे साइज के कपड़े नहीं मिलते। अच्छा। तो फिर मुझे बनवाने पड़ते हैं। देयर इज माय डिजाइनर, शी मेक्स फॉर मी। वो बहुत अच्छे बनाते हैं। ओकेजनली यू नो हम देसी पहन लेते हैं। हाँ। ओके, व्हाट्स 3 मेकअप आइटम्स जो आपके बैग में हर रोज होते हैं? लिपस्टिक, ओके, मस्कारा और आईलाइनर। ये पहली बार सुना है मैंने। आईलाइनर रोज होता है बैग में? वो तो होता ही बैग में। अच्छा, रहता है, उसका घर है। छोटा सा पाउच है, उसके अंदर ये इतनी सी चीजें डाली हुई हैं। That eyeliner is like this much. मिनी वर्जन है, ठीक है। ओके, कोई एक ऐसा मेकअप ट्रेंड जो कि आप इन्वेंट करना चाहेंगी? इन्वेंट करना चाहूंगी, ओके। Yes, please. I want to go back to that vintage style. Vintage style. Y2K या फिर वो जो बड़ा सा आईलाइनर, रेट्रो स्टाइल और थोड़ा विंटेज का मिक्सचर, उस टाइप का बहुत क्यूट लगता है। दोनों का मिक्सचर एक्चुअली हमने जो देखा है वो रेट्रो एक अलग से है, फिर वो अलग से है, दोनों का मर्ज, और एक ओरिजिनल अलग है, एक जो हमने देखा है वो अलग। पर हम अगर मर्ज करें तो बहुत क्यूट कुछ लग सकता है। उसको हमें दोबारा से ट्रेंड में लाना है गाइस। ओके रीच, बड़ा मजा आया आपके साथ चिट चैट करके, बट अब हम खेलेंगे एक गेम। हाँ, ठीक है, नाइस। गेम का नाम है मेरी ड्राइंग मेरी मर्जी। ये आप एक मार्कर ले लें। अब इसमें करना ये है, इस बोल में चिट्स हैं, आप चिट उठाएंगी, सही है, मुझे दे देंगी, या मैं खुद ही उठा लेती हूँ और मैं आपको पढ़ के बता दूंगी कि क्या बनाना है। पर इस पे तो लिखा है कि मेरी ड्राइंग मेरी मर्जी, तो मेरी मर्जी की ड्राइंग होगी ना? आपकी मर्जी की होगी, लेकिन ड्राइंग तो आपकी मर्जी होगी, सिचुएशन तो हम ही देंगे ना। रेडी? ओके, तो पहली ड्राइंग है दूध के ग्लास में गिरी हुई मक्खी। दूध के ग्लास में गिरी हुई मक्खी, यस। और मैं आपको भरपूर जज करने वाली हूँ इस पे। नहीं जज करो यार।
ऑल्सो सिर्फ 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जो ठीक कि है? अब शुरू हो रहा है जब मैं आधा ग्लास हाँ, जब मैं आप आधा ग्लास बना चुकी है, नहीं आपका शुरू हो चुका है, ठीक है? ग्लास काफी भरा हुआ लग रहा है। तो इसमें मक्खी गिरेगी ना, ऐसे तो नहीं गिरेगी यार मक्खी तो आधे ग्लास में भी डूब सकती है। कभी कभी मक्खियाँ इतनी चालाक होती नहीं डूबती। साजिश। गिर गई आगे मक्खी गिर गई। ये मक्खी है। मक्खी बनाने की मेहनत भी नहीं की, ये एक डॉट है जो कि है। अब आप मक्खी समझो, मच्छर समझो, यार वो डूब के मर गई है ना। वफात पा गई है गाइस मक्खी हमारी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है, इसको तो मैं 2 से ज्यादा दूंगी नहीं। 2 मक्खी के पर भी नहीं है आपको। ये मक्खी क्या है? डॉट के पर टूट गए, पतले होते हैं बहुत। गाइस प्लीज आप इसको कमेंट सेक्शन में रेट करें क्या मैंने 2 सही दिया है, क्योंकि ये तो नेगेटिव में जानी चाहिए, बट चलो ओके 2 दे देते हैं आपको। ओके रीज, यू कैन हैव दिस डस्टर। should I erase it? Yes please। पिकासो तो था नहीं, मतलब पिकासो का कोई आर्ट वर्क तो था नहीं कि कभी इरेज नहीं करना है। ओके ये तो आसान है, ये तो आप आराम से बना लोगे। क्या? बंदर के हाथ में नारियल। क्या है इस बंदर का नाम? दज्जाल। तुमने बंदर कहा है ना, तुम्हें बंदर। तो ये बंदर मैंने आज तक ऐसा बंदर नहीं देखा, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा बंदर के हाथ में नारियल भी बन गया फटाफट। अब दिखा भी दे आपने जो बहुत कम टाइम में मास्टरपीस बनाया है, प्लीज। I'm speechless। ठीक है, मेरे पास अल्फाज नहीं है इतनी अच्छी ड्राइंग को बयान करने के लिए। Oh my God। मैं कहाँ से शुरू करूँ? एक तो बंदर का मुंह क्या है, क्या हुआ है उसको? ठीक है वो यार वो बनाना खा रहा था ना, तो बंदर के हाथ पैर गोल गोल क्यों है? कितना खाते पीते घर का बंदर है वो। हाँ ये तो मैंने देखा ही नहीं। तो और वो नारियल तो लग ही नहीं रहा, एटलीस्ट स्ट्रॉ लगा लेती। यार स्ट्रॉ लगा कर भी नहीं रखना था। एनीवेज अच्छी है ना, सब बताएं। इसको प्लीज आप रेट करें, क्योंकि इसको मैं नेगेटिव से ऊपर तो जाने नहीं दूंगी। नहीं अरीज, दैट वाज रियली बैड। प्लीज, ये बंदर नहीं है। I deserve 10। 10? सब हंसे इस पर। More like a negative 10, but okay। एक और भी है, लास्ट है। नहीं यार आप ना अच्छे बंदर बना लेती हो, तो एक बंदर जो गाड़ी चला रहा है। गाड़ी भी चला रहा है? गाड़ी भी चला, हमारा बंदर यू नो बहुत टैलेंटेड है। नारियल पानी भी पी रहा है खुद ही से, गाड़ी भी चला रहा है। गाड़ी भी चला रहा है। बंदर की गाड़ी भी उसके जैसी बनाई है आपने। फिर से गोल गोल बंदर हो गया बिल्कुल ही। ये बंदर है। उसके हाथ में अगर स्टीयरिंग भी पकड़ा दें आप, स्टीयरिंग पकड़ लिया उसने यार। फिर टाइम खत्म हो गया आपका। खत्म। हाँ ठीक है। बंदर के बाल है सर पे। हाँ विग पहनी है उसने। ऑल्सो ये स्टीयरिंग व्हील को क्या हुआ है? ये ऐसा लग रहा है ये ना टेलीपोर्ट करने वाला किसी टाइम मशीन में जा रहा है बंदर। तुम बनाओ। क्या बंदर? नहीं मैं तो यहाँ सिर्फ जज करने बैठी हूँ, मैं तो बस यही, मेरा काम ही यही है। अरे ऑल्सो नहीं, अभी रुको, मैं क्रिटिक्स कर रही हूँ इस पे, जरा मुझे देखने। ठीक है, बहुत क्यूट है यार, तुम्हें अच्छा लग रहा होगा। बंदर खड़ा हुआ क्यों है गाड़ी पे? बैठा हुआ है, उसके पास सीट नहीं है। तो खड़े होकर गाड़ी चला रहा है। यार चलो एटलीस्ट एफर्ट किया है। बंदरों को बैठने की जरूरत नहीं पड़ती, वो लटक जाते हैं स्टीयरिंग के ऊपर भी। ये लटका हुआ है। ये एक और हमारे इल्म में इजाफा हुआ, उनको बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ। है ठीक है। इसको हम 9 देंगे, ठीक है, 10 नहीं देंगे। 10? There is always room for improvement ना। Okay. अच्छा, we would love you guys to rate this one also, ठीक है। और इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटू सा ब्रेक। We'll be back after a short break. Hey guys, welcome back। आप देख रहे हैं द ट्रेंड सेटर शो और आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत गेस्ट मौजूद हैं, अरीज चौधरी। ओके अरीज, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। Another game. Yep, it's called the swipe game. इसमें ये करना होगा कि I'll be taking names, सही है। अगर तो आपको उनसे दोस्ती करनी है और you want to be friends with them or you like that person, तो आप राइट स्वाइप करोगे। अगर आपको बंदा नहीं पसंद और आपने इग्नोर करना है तो आप लेफ्ट करोगे। You ready? Okay. नाम लेना शुरू करूं? रेशम। Left. लेफ्ट? हाँ। Why?
No, why? ना there You is didn't. a You why. didn't ask about. अरे ये तो हम छुपा के रखते हैं ना, सब थोड़ी बता देंगे। आगे चलो। अच्छा चलो ठीक है, मतीरा। Left. सबको लेफ्ट कर दोगी और हाँ। रीजन भी नहीं बताओगी? दोस्त अभी देख रही हो ना आगे कौन अच्छा आएगा। देख रही हूँ, मैं अपने पसंद के दोस्त चूज करूंगी। चाहत फतेह अली खान, इस पे तो तुम यस ही करोगे, आई एम प्रीटी श्योर, है ना? Very left. वेरी लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट। काविश। Left. Why? Because I don't know them much. So left. Everybody loves काविश यार। हाँ, but तेरे I like to say right. एकदम से मेरा दिल दुख गया। काविश का नाम आते ही। लेफ्ट? ओके, शोएब मलिक। Right. राइट। शुक्र है किसी को तो राइट किया। I know him. बाकी किसी को भी नहीं जानती? Not personally, no. अच्छा। शीबा साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो चैरिटी वर्क कर रहे हैं, वेलफेयर कर रहे हैं। Left. फिर से लेफ्ट। इतना मैंने बताया तब भी लेफ्ट। Left. यार बट वो केक भी बांट रहे हैं, क्या हुआ? नहीं, यू डोंट वांट टू बी फ्रेंड्स विद देम? आपको केक देंगे? नहीं, मैं मिलने के बाद फ्रेंड बन गई। अच्छा चलो ठीक है। बिलाल Q2। बिलाल Q2? Q2। Who Q2? बिलाल Q2। Bilal? Who Bilal? Like who? I want to know the full name. Okay, he is sort of TikToker, influencer. अरे आगे तो सुनो। Also he was in, you know, this reality show kind of thingy. तमाशा? No, it wasn't तमाशा. It was वकार जगा का शो था। I नहीं, don't know. अच्छा Left हटा ही आगे दिया। चले। ठीक है। अली गुलपीर। Left. वकार जका। Left. साहिर लोधी। Okay, right. एहसान है भाई आपका, प्लीज कुछ तो बात है साहिर भाई में। नहीं, I did shows with him. So I अच्छा। know him. और आजकल वो पोच्ड एग्स खा रहे हैं, सुनने में आया। क्या खा रहे? पोच्ड एग्स, यू नो, एवरीडे ब्रेकफास्ट है। हाँ, वो अपना बहुत ख्याल रखते हैं। रखना भी चाहिए। Okay, moving on to our next segment. It's a rapid fire round. इसमें आपने फटाफट जवाब देना है without using a single brain cell. ठीक है? तो शुरू करें? मिस वर्ल्ड पाकिस्तान या मिस अर्थ पाकिस्तान सबसे ज्यादा प्राउड किस टाइटल पे फील करती हैं? मिस वर्ल्ड पाकिस्तान। ओके, अगर एक दिन के लिए किसी और एक्ट्रेस की लाइफ के साथ स्वैप करनी हो तो किसे चूज करेंगी? मेगन फॉक्स। मेगन फॉक्स? यस। आप तो बहुत ही आगे चली गई। ना आगे जाना पसंद है। आगे जाना पसंद करेंगी। ओके, ड्रामाज या मॉडलिंग ज्यादा मजा कहाँ आता है? ड्रामा। ड्रामा। सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट सेट या स्टेज पे? नो, आई डोंट थिंक सो। कोई तो एम्बैरेसिंग मोमेंट रहा हो? कभी भी नहीं? नॉट ऑन सेट। ऑन स्टेज में भी? मे बी नॉट ऑन स्टेज। ओके, अच्छी बात है। सो आई कांट गो ऑन बोथ। ओके, अगर एक पॉलिटिशियन के साथ डिनर का मौका मिले तो किसके साथ जाना पसंद करेंगी? नाम नहीं है इसमें? नहीं, नाम आप लेंगी ना? कोई भी नहीं। कोई भी मौका मिल रहा है, इतनी बड़ी चीज आपको मिल रही है, डिनर आपको मिलेगा, मौका मिल रहा है खुद के साथ करूं। अच्छा, खुद के साथ डिनर होगा। ओके, एक्टिंग में ड्रीम को स्टार कौन है? फिरोज खान। ओके, फिरोज खान। अगर साइकोलॉजी और एक्टिंग में से एक करियर चूज करना पड़े तो क्या चूज करेंगी? एक्टिंग ऑब्वियसली। वो ऑलरेडी चूज कर चुकी हैं गाइस। ओके, कोई एक चीज जो लोग आपके बारे में नहीं जानते? तो अब जान जाएंगे अगर बता दूंगी। Actually, that's smart. बात सही है। हमने आपको ना ट्रिक करने की कोशिश की लेकिन आप हुई नहीं। कोई बात नहीं। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो कभी मिला हो आपको? I always get compliment on my eyes. Eyes? You have beautiful eyes though. Okay. अगर एक दिन के लिए इनविजिबल हो जाएं तो सबसे पहले क्या करेंगी? सबकी बातें सुनूंगी चुप के। वही सब इनविजिबल हो गए। लोग सबकी बातें क्यों सुनना चाहते हैं? ऐसी कौन सी बातें हो रही हैं जो सामने नहीं हो रही हैं? नहीं होती ना सामने। और सबको फिर जाननी क्यों अगर सामने नहीं हो रही है तो? और अगर फॉर अ रीजन सामने नहीं हो रही ना, इनविजिबल होने का तो हाँ, मैंने तो कोई फन आप है। जाके बैंक से पैसे चुरा सकती हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन आपने भी बात ही सुननी है। इसमें मजा आएगा ना, तभी तो आप पैसे चुराने जा सकेंगे ना बातें सुनने के बाद। कुछ कितने बजे खुलेगा, कितने बजे बंद होगा, कैसे होगा, तो ठीक है। ओके, अगर आपके पास टाइम मशीन होती तो वापस कौन से एज या फेज में जाना चाहेंगी? मे बी इन माई टीन। ओके, टीन्स आपने एंजॉय की अपनी? हाँ, माई स्कूल टाइम। मैं तो बहुत ही स्कूल भी, कॉलेज, बहुत मजा आया। दैट्स गुड।
अगर आप एक फ्रूट होती तो कौन सा फ्रूट होती? मैंगो। मैंगो। यू लाइक मैंगोस? बहुत मीठे होते हैं। ओके। अंधेरा या ऊंचाई, ज्यादा किस चीज से डर लगता है? दोनों से नहीं लगता। Fearless. We love a fearless women, guys. Okay. कोई पाकिस्तानी सेलिब्रिटी क्रश? नो क्रश। नो क्रश? ओके। अगर आपके फोन में कैमरा या इंटरनेट में से कोई एक चीज हटा दी जाए तो आप क्या चूज करेंगी? कैमरा हटा दें। कैमरा हटा दें, इंटरनेट रहने दें, तो इंटरनेट पे क्या देखेंगी? इंटरनेट से दोबारा तरीका निकालूंगी कि कैमरा कैसे लगाना है। स्मार्ट। आप यहीं रहें, हम आपसे और बातें करेंगे। एंड यस गाइस, वी विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। हे गाइस, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द ट्रेंड सेटर शो और हमारी आज की गेस्ट मौजूद है हमारे साथ, द स्टनिंग अरीज चौधरी। ओके अरीज, अब हम आपके साथ एक मजे का गेम खेलने वाले हैं। इट्स कॉल्ड द टंग ट्विस्टर। मैं एक टंग ट्विस्टर बोलूंगी, आपने उसको कम से कम 5 बार रिपीट करना है टू विन। ट्रेंड सेटर पे ट्रेंड बनेगा, ट्रेन से तेज ट्रेंड चलेगा। ट्रेंड सेटर पे ट्रेंड बनेगा, ट्रेन से ज्यादा ट्रेन से तेज ज्यादा ट्रेन से तेज ट्रेंड चलेगा। ओके, फिर से 5 टाइम्स दोबारा बोलो। ट्रेंड सेटर पे ट्रेंड बनेगा, ट्रेन से तेज ट्रेंड चलेगा। ट्रेंड सेटर पर ट्रेंड चलेगा, ट्रेंड बनेगा। ट्रेंड सेटर पे ट्रेंड बनेगा, ट्रेन से ज्यादा तेज ट्रेंड चलेगा। आपको करना है, हाँ। ट्रेन से तेज चलाना है। क्या इतना एग्जैक्टली बोला है? हाँ ऐसे अपनी मर्जी से थोड़ी टंग ट्विस्टर बना रहे हैं। ओके। ट्रेंड सेटर पर ट्रेंड चलेगा, बनेगा। ट्रेंड सेटर पर ट्रेंड बनेगा, ट्रेन से तेज ट्रेंड चलेगा। ओके, बस हो गया ना? बहुत खराब बोला ये तो, चलो कोई बात नहीं। ओके, काली रेल काली काली, पीली रेल पीली पीली। ये तो इजी है। काली रेल काली काली, रेल नहीं रेल। काली रेल काली काली, पीली रेल पीली पीली। 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 गुड, अब हो गया ना? हाँ, ये ठीक था। ओके, लास्ट वन। 6 चेहरे 6 चाय के चमचे जैसे। 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 गुड, ऐसा होगा ना? हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल सही किया आपने, लास्ट के 2 तो बहुत अच्छे किए। ओके, moving on to our next game. It's called दिमाग की घंटी। अब इसमें करना क्या है, मैं आपसे कोई सवाल पूछूंगी, ठीक है? उसका जवाब आपको within 5 seconds देना होगा। ओके। तो आपका सवाल सही होना मैटर नहीं करता, लेकिन फास्ट आपको होना है, ठीक है? यू रेडी? कोई 3 एक्ट्रेस जिनके नाम में खान आता है। मायरा खान, माया खान। डन, आगे घंटी बजेगी। ओके। कोई 3 मसालों के नाम। गरम मसाला, चिकना मसाला। चिकना मसाला? एक सेकेंड, होल्ड ऑन। चिकना मसाला क्या होता है? पता नहीं मुझे। चिकना क्या? नहीं। आउट ऑफ ऑल द वर्ड आपके दिमाग में चिकना आया? बहुत अच्छा खेला आपने ये, बस अच्छा खेला आपने। अच्छा, अब हम आपसे पूछेंगे पहेलियां। वो कौन सी चीज है जिसे हम खाने के लिए लाते मगर खाते नहीं है? खाने के लिए लाते मगर खाते नहीं है? ये मुझे भी बताओ क्या है? अरे कुछ तो दिमाग में आया होगा। क्या खाते हैं? हाँ, ये इससे हमारी अम्मियों को बड़ा प्यार होता है। क्या? नहीं पता। मेरी अम्मा जहेज में भी लाई थी। सच में? हाँ। ऐसा क्या है? बर्तन। क्यूट। ओके, माँ का नाम 56 है, बेटे का नाम 46 है और हाँ। बेटी का नाम 36 है, तो बाप का नाम क्या होगा? 66। गलत जवाब, 6, क्योंकि सबके साथ उनका सरनेम लग रहा है ना। 56। तो 66 सही हुआ ना? नहीं, 56। बाप का नाम 6 है। हाँ। क्योंकि अम्मा के साथ लगा 56
बेटे के साथ लगा 46, बेटी के साथ 66 का 6 लगा ना सबके साथ। उनका नाम ही 6 है, एक नाम है उनका बस। नहीं, उनका पूरा नाम बताया मैंने तुम्हें, 66। उनका नाम सिर्फ 6 है। हमारे अब्बा है ना यार, 6 मेरा जवाब ठीक है। हो गया, अच्छा जवाब था आपका। कौन सी मछली है जो स्विम नहीं कर सकती? कौन सी मछली जो स्विम नहीं करती? नहीं कर सकती ही नहीं है, उसके बस में ही नहीं है। मरमेड। क्यों, वो तो स्विम करती है, जलपरी तो है ही नहीं, मरमेड तो है ही नहीं। तो फिर कोई ऐसी मछली बताए ना जो तुमने मरमेड देखी? हाँ। कहाँ? वो मेला लगा था वहाँ पे एक दफा। तुमने स्विम करती देखी? हाँ, वो ना बहुत वाहियात सी मरमेड थी, मुझे याद नहीं दिला, बचपन याद आ गया। अच्छा, मछली। वो जो बकरे के गोश्त की बोटी होती है मछली, वो स्विम नहीं कर सकती। खाई कभी? हाँ? एक सेकंड, बकरे के गोश्त की बोटी मछली? मछली कहते हैं, मछली जिसे जो पार्ट हम खाते हैं। कौन सी जबान में? उर्दू में? हाँ, सही जवाब है। तुमने नहीं खाई होगी। नहीं, मैंने नहीं खाई, मुझे पता भी नहीं था, लेकिन आपका जवाब बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे पास एक अलग जवाब था, वो भी हम आपको बता देते हैं। वो था मरी हुई मछली। ओके, ठीक है। पर मरी मछली खास है, स्विम करती है। कैसे? वो सिर्फ फ्लोट करती है, स्विम नहीं करती। हाँ, है ना? फिर मेरा जवाब ज्यादा सही है। आप जीत जाओ यार ये वाला। ऐसी कौन सी चीज है जिसे लड़कियां पहनती भी हैं और खाती भी हैं? पहनती भी है और खाती भी है। लिप ग्लॉस। माइंड ब्लोइंग आंसर यार, एक्चुअली यस। हाँ, इट कुड बी लिप ग्लॉस और लिपस्टिक। हाँ, तो खा जाते हैं और खा जाते हैं, लगाते भी हैं। यस, तो इट्स अ गुड आंसर। सबसे अच्छा आंसर तुमने दिया। खाया ना? हाँ, क्योंकि वैसे इसका जवाब तो लॉन्ग था, लेकिन आपका जवाब ज्यादा वैलिड है, हम उसको एक्नॉलेज करेंगे। लिख लो मेरे आंसर्स। वो कौन सी चीज है जो पानी से गुजरने के बाद भी गीली नहीं होती? ऐसी कौन सी चीज है? कौन सी चीज हो सकती है जो पानी के ऊपर से या पानी के पास से? पानी में से। पानी में से। पानी के अंदर डब्बे के अंदर कोई बॉल, वो गीली नहीं होगी। गलत जवाब, साया। साया? यस। कैसे? साया गीला होता है? साया पानी में आता है? हाँ, बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। देखूंगी मैं। देखना। ओके, लास्ट वन। वो कौन सी चीज है जिसके फटने पर आवाज नहीं आती? फटने पर? यस। वो तो बहुत सही चीज है ऐसी। ठीक है, आप एक का नाम बता दें। कपड़े। कपड़े फटने पे आवाज आती है? नहीं आती। आती है। आराम से फाड़ो, नहीं आती। आराम से क्या, क्यों फाड़ेगा कोई कपड़े? तो जोर से क्यों फाड़ेंगे? आराम से फाड़ते हो। पेपर की भी आवाज आती है। कपड़े पहली बात तो यूं फटते ही नहीं कभी भी। कपड़े फटते हैं, पतले वाला कपड़ा सिर्फ फट जाती है आराम से। हाँ, यूं फट रहे कपड़े? हाँ। इतना आराम से? हाँ। आपका जवाब गलत है, बिल्कुल अच्छा नहीं था ये जवाब। एग्जैक्टली, कपड़ा तो बहुत यूं करके वो होता है। अच्छा चलो तुम बताओ। इसका जवाब है दूध। दूध फट जाता है ना, उसकी आवाज कब आती है? ऑल्सो, अच्छा अरीज, जाने से पहले एक आखिरी सवाल आपसे। जो यंगस्टर्स और यंग लड़कियां आपको देख रही हैं, who wants to pursue this career, ब्यूटी पेजेंट्स में जाना चाहती हैं या मॉडलिंग करना चाहती हैं, उनको आप कौन सी एडवाइस देंगी? I would like to say stay confident, never give up, और जो distractions होती हैं उन पे तो कभी फोकस ना करें। That's all. Thank you so much, Areej. Also, guys, this was the episode for today. और भी आने वाले हमारे episodes के लिए stay tuned. And yeah, this is Arika Haq signing off. See you guys in the next one. Allah Hafiz.